یہ کہانی صرف چوری یا امیری کی نہیں، یہ کہانی ہے اس رات کی جب قبرستان زندہ ہو گیا اور جنات نے انسان کا امتحان لیا۔ اگر آپ کمزور دل ہیں تو شاید یہ کہانی آپ کے لیے نہیں، کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں جنات، قبرستان اور خون جمانے والی سچائی کی۔ یہ کہانی ہے فضلو کی، جو امیر بننے نکلا تھا مگر جنات کی دنیا تک پہنچ گیا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے فہد اور آپ دیکھ رہے ہیں فہد اسکیری سٹوریز۔ اگر آپ جنات کی خوفناک کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی خوفناک کہانیوں کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ کہانی ہے سندھ کے ایک علاقے کی جس کا نام ہے قبرستان کا قرض۔ فضل الدین نام کا لڑکا، جس کو پیار سے فضلو کہا جاتا تھا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کا باپ ایک مزدور تھا، وہ مزدوری کرتا اور ایک وقت کی روٹی کماتا۔ وہ سب وقت کے ساتھ پس کر ایک سادہ زندگی گزار رہے تھے۔ لوگوں کے پاس دولت اور مہنگی چیزیں دیکھتے تو دل کو بہت سمجھاتے، مگر پھر بھی دل میں یہ بات آتی کہ یہ چیزیں ہمارے پاس بھی ہوتی۔ فضلو جو اس وقت 11 سال کا تھا، بچوں کے ساتھ باہر کھیلتا تو ان کی چیزیں نوٹ کرتا، ان کے جوتے اور کپڑے اور کچھ باتیں ماں باپ سے سن کر بھی اس طرف دھیان لگا بیٹھا۔ وہ وقت سے پہلے جوان ہو چکا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے کہتا کہ مجھے اب بچوں کے ساتھ نہیں کھیلنا، ان کے کھلونوں کے ساتھ نہیں کھیلنا، مجھے مزدوری کر کے کوئی کام کرنا ہے اور پیسہ کمانا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اور اپنے ماں باپ کو امیر دیکھنا چاہتا تھا۔ ماں باپ کے سمجھانے کے باوجود بھی فضلو اب اس راہ پر چل پڑا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اسے شہر جانے کی اجازت دی جائے۔ اس کے باپ کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ شہر جائے گا، کوئی ہنر سیکھے گا، کوئی کام کرے گا اور اپنے ماں باپ کے لیے ڈھیر سارا پیسہ کما کر لائے گا۔ اپنے باپ کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ شہر چلا گیا۔ وہاں کی گہما گہمی میں حالات بڑے مشکل محسوس ہوئے۔ کہیں نہ کہیں سے کھا پی کر گزارا کر لیتا اور رات کو کسی سڑک کنارے سو جاتا۔ کام تلاش کرتا اور سوچتا کہ کیسے امیر ہوا جائے۔ ایک دن ایک چابی بنانے والے کے پاس گیا۔ اس سے کہا کہ مجھے کام پر رکھ لو، میں تم سے ہنر سیکھوں گا اور اس کے بدلے تم سے روٹی لے لیا کروں گا۔ فضلو اب اس دکان والے کے ساتھ کام کرنے لگا۔ وہ دل لگا کر کام کرتا تھا۔ کچھ مہینے گزرے، فضلو اب اچھا خاصا کام سیکھ چکا تھا۔ وہ اپنے کام میں بڑا ماہر تھا۔ وہ ہر قسم کے تالے کی چابی بنا لیتا اور ہر قسم کا تالا کچھ ہی منٹوں میں کھول لیتا۔ اب اس کو اس کی مہارت کے بدلے پیسے ملنے لگے۔ وہ ایک دن اپنے گھر کی طرف لوٹا۔ ماں باپ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ فضلو نے بتایا کہ وہ اب بہت اچھا کام جانتا ہے اور اپنے کام میں مہارت رکھتا ہے اور وہ یہ کچھ پیسے بھی کما کر لایا ہے۔ گھر والے اپنے بیٹے کی کامیابی پر بہت خوش ہوئے کہ چلو کوئی تو کام سیکھا، کسی کام میں تو ترقی کی۔ اس کے باپ نے ذکر کیا کہ وہ کسی کام کی غرض سے گاؤں گیا۔ وہاں کا چودھری بہت امیر تھا، اس کی حویلی جنت سے کم نہیں تھی۔ ہر قسم کی سہولت ہے اور اس کے پاس بہت سے زیورات، پیسہ اور قیمتی چیزیں ہیں۔ یہ سن کر سب کے دل میں خیال آیا کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسی حویلی ہوتی۔ فضلو کے دل میں خیال آیا کہ جو ہنر اس نے سیکھا ہے اس سے ایک وقت کی روٹی مل سکتی ہے، وہ حویلی نہیں بنا سکتا۔ اگر ساری عمر بھی محنت کرے تو اتنا پیسہ اس کے ہاتھ نہیں آ سکتا۔ وہ شہر گیا تو سوچنے لگا کہ کیسے اتنا پیسہ کمایا جائے۔ آخر شیطان نے اس کے دماغ پر غلبہ پایا اور اس نے سوچا کہ وہ چوری کرے گا۔ کسی طرح چودھری کی حویلی میں گھسے گا اور زیورات اور قیمتی چیزیں چوری کر کے وہ امیر ہو جائے گا۔ آخر وہ اس گاؤں پہنچا جہاں پہ چودھری رہا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ حویلی کو ہر طرف سے پہرے داروں نے گھیرا ہوا ہے اور کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے جس سے حویلی میں داخل ہوا جائے۔ اس نے ایک منصوبہ سوچا کہ کسی طرح اس حویلی کے خاص ملازم سے دوستی کی جائے اور کسی طرح اس حویلی کے تمام راز لیے جائیں۔ اس نے حویلی کے باہر ایک ٹھکانہ بنایا جہاں پر روز بیٹھتا اور ہر آتے جاتے بندے کو دیکھتا کہ کون اس کے جال میں پھنس سکتا ہے۔ آخر اسے ایک دن ایک ملازم ملا جو چودھری صاحب کا بہت قریبی تھا اور رات میں بھنگ پیا کرتا تھا۔ نشے سے اس کی جان نہیں چھوٹتی تھی۔ ایک دن فضلو نے اس کا ٹھکانہ ڈھونڈا۔ رات کو جب وہ بھنگ گھونٹ رہا تھا تو فوراً فضلو اوپر سے چلا گیا۔ اس نے فضلو کی طرف دیکھا اور غصے سے کہا، کون ہو تم اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ فضلو نے کہا کہ ناراض مت ہو، میں بھی تمہارا ساتھی ہوں اور مجھے یہاں بھنگ کی خوشبو کھینچ کر لائی ہے، کیا تم مجھے تھوڑی سی دو گے؟ نشے کے آدمی کو اگر کوئی ساتھ مل جائے تو وہ اچھا محسوس کرتا ہے۔ اس نے کہا، آؤ بیٹھو۔ اب وہ بھنگ گھونٹ کر پینے لگے اور فضلو پینے کا ناٹک کرتا کہ اس کو لگے کہ وہ بھنگ پی رہا ہے۔ جب اس کا نشہ اترا تو فضلو نے کہا، بہت مزہ آیا، یہ لو پیسے، کل میرے پیسوں کی لے کر آنا۔ وہ بہت خوش ہوا
इस तरह फजलू ने उसका दिल जीत लिया। अब वो रात को भंग पर मिल बैठते और आहिस्ता आहिस्ता फजलू ने उससे सवाल किया कि पता चला सके कि खजाना कहाँ है। फजलू कहता कि चौधरी साहब खजाने का ख्याल कैसे करते हैं, लोगों को पता नहीं चल जाता। वो कहता नहीं, ऊपर वाले कमरे में है, तिजोरी में, बहुत बड़े लॉकअप में। फिर उसने कहा कि वहाँ कोई नहीं जाता। उसने बताया कि हर तरफ से पहरा होता है सिवाय एक दीवार के। जब चौधरी जाता है तो उस दीवार के करीब पहरा लगता है, आगे पीछे नहीं होता। अब उसे पता चल चुका था कि वो किस तरह चोरी करेगा। एक दिन उसने पूछा कि चौधरी साहब कहाँ हैं। उसने बताया कि आज चौधरी साहब दूसरे शहर शादी पर जा रहे हैं और 3 दिन बाद वापस आएंगे। उसने सोचा कि आज अच्छा मौका है, उनके आने से पहले खजाने की सफाई कर दूंगा और अमीर हो जाऊंगा। जैसे ही चौधरी निकला उसी रात फजलू ने दीवार फलांगी और चौधरी की हवेली के अंदर चला गया। देखा कि जिस तरह उसके बाप ने बताया था उससे ज्यादा कहीं खूबसूरत वो हवेली है। वो हवेली को देखता रह गया। आखिर उसने तिजोरी वाले कमरे का मेन दरवाजा अपनी महारत से खोल लिया, क्योंकि वो अब एक तजर्बाकार ताले खोलने वाला था। अब वो अंदर कमरे में दाखिल हुआ और तिजोरी ढूंढने लगा। एक बड़ी तस्वीर के पीछे उसे तिजोरी मिल गई। जब उसे खोलने की कोशिश करने लगा तो उसे आवाज आई चौधरी साहब की बेगम के बोलने की, जैसे वो लड़ रही हो, गुस्सा कर रही हो। फिर चौधरी साहब की आवाज आई अपनी बेगम से बहस करने की, जैसे वो कह रहे हो हम वापस आ गए हैं ना, कब रुके हैं वहाँ, जैसे आपस में वो कोई झगड़ा कर रहे हों और वहाँ झगड़ा करके आए हों। फजलू घबरा गया और इर्द गिर्द देखने लगा कि अब क्या करूं, यहाँ एक ही मेन दरवाजा है। फिर चौधरी साहब के ऊपर आने की आवाज आने लगी, सीढ़ियों पे पाँव की आवाजें आने लगी। अब उसे हवेली की और खजाने की फिक्र नहीं थी, उसे बस अपनी जान की फिक्र थी कि वो अब कैसे बचाए। चौधरी ऊपर आया तो मेन दरवाजा खुला देखकर अपनी बेगम से बोला, क्या तुमने जाते हुए दरवाजा बंद नहीं किया था? उसकी बेगम ने गुस्से में कहा कि मुझे नहीं याद। चौधरी ने कमरे का दरवाजा खोला तो सामने फजलू खड़ा था। चौधरी ने फौरन देखकर शोर मचा दिया, चोर चोर, और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अब फजलू सिर्फ उसी दरवाजे से बाहर जा सकता था और वो दरवाजा चौधरी बाहर से बंद कर गया था। अब फजलू को जान के लाले पड़ गए। वो सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। चौधरी ने अपने मुलाजिम को आवाज दी कि ऊपर चोर है, मैं उसे अपने कमरे में बंद कर आया हूँ, हथियार लो और जाओ ऊपर, उसे भागने मत देना, मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। उसका मुलाजिम बंदूक लेकर ऊपर आ रहा था। अब फजलू ने सोचा कि मारे जाने से बेहतर है कि मार दो और भाग जाओ। जैसे ही मुलाजिम ने दरवाजा खोला और बंदूक अंदर की, दरवाजे के पीछे फजलू खड़ा था। वो तेजी से उसके ऊपर झपट पड़ा और उसके सर में एक भारी चीज से वार किया, जिससे वो बेहोश हो गया और फजलू भाग निकला। जल्दी से दीवार फलांगी और कदम पे कदम भागने लगा। अब उसे अपने पीछे पुलिस के हॉर्न की भी आवाज आ रही थी और वो जान बचाने की गर्ज से दौड़ता रहा। एक जगह उसका पांव फिसला और वो गिर गया। चोट तो ना आई, मगर उसने जब उठकर देखा तो वो एक कब्रिस्तान था। उसे एकदम ख्याल आया कि इतना गहरा कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान में तो जिन्नात भी होते हैं। रात के उस वक्त उसे अचानक एक उल्लू बोलने की आवाज आई। उसने सोचा कि उल्लू तब ही बोलता है जब वो कोई चीज देखता है। उसने देखा कि एक काला साया जिसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें हैं और वो दरख्त के पीछे से उसको झांक रहा है। उसे बहुत खौफ आया और वो भागने लगा। थोड़ा ही दूर गया था कि उसका पाँव फिर किसी चीज से अड़ा और वो गड्ढे में जा गिरा। उसने देखा कि वो एक मुर्दे के ऊपर गिरा हुआ है, मुंह के बल। डर के मारे उसकी हिचकी बंध गई। अब वो हिम्मत करके उठा। उसने देखा कि दरख्तों के पीछे से कई लाल आंखों वाले साए उसे घूर रहे हैं। उसे कुछ समझ ना आई और वो दोबारा लेट गया। जैसे ही उसका सांस बहाल हुआ उसने रेंगना शुरू कर दिया। रेंगते रेंगते आगे गया तो उसने देखा कि काले साए हैं और एक आग जलाकर उसके इर्द गिर्द मंडला रहे हैं। आग के जलने की आवाज आ रही है, चिंगारियां निकल रही हैं। वो डर के मारे रेंगता रेंगता आगे गया। जैसे ही वो आगे गया उसने देखा कि एक औरत, जिसकी बहुत खौफनाक शक्ल है, वो कमर करके बैठी हुई है और आग जलाई हुई है। वो उस आग में कुछ फेंकती है जिससे बहुत तेज बदबू आती है, बहुत गंदी बदबू आती है। फजलू के औसान खता हुए और उसने सोचा कि अब मौत पक्की है। पुलिस के डर से यहाँ आया और यहाँ मौत इंतजार कर रही थी। वो फिर से लेट गया और रेंगने लगा। अब उसने सोचा कि वो तब तक रेंगेगा जब तक उसे कोई ठिकाना नजर नहीं आ जाता। वो रेंगता रहा। काफी दूर जाकर उसने देखा कि एक दीवार है। उसने होश कर गौर किया तो वो एक मस्जिद थी। उसने फौरन खड़े होकर मस्जिद का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। वो गांव की एक पुरानी मस्जिद थी। छोटा सा सहन था, एक कमरा था और खजूर की
सफ़ें बिछी हुई थी। वो चुप करके एक कोने में बैठ गया। एकदम उसने देखा कि रात के अंधेरे में कमरे की एक तरफ से रोशनी आने लगी। उसने देखा कि एक साया रोशनी बनकर अंदर दाखिल हुआ, जिससे आर पार देखा जा सकता था। देखने में वो एक इंसान जैसा था। सफ़ेद रंग था, सफ़ेद कपड़े थे और सफ़ेद दाढ़ी रखी हुई थी। एक एक करके उस तरह के कई साए दीवारों से अंदर दाखिल होने लगे और उस सफ पर आकर बैठने लगे, जैसे लोग नमाज के लिए बैठते हैं। जिस तरफ फजलू मुंह कर बैठा था वो मस्जिद का मेहराब था। एकदम मस्जिद के मेहराब से एक साया निकला। वो भी उन जैसा था, लेकिन कद में उनसे बड़ा था, दाढ़ी भी उनसे बड़ी थी। उसने आके सबको सलाम किया और कहा कि तुम सबका शुक्रिया, तुम मेरे बुलाने पर सब यहाँ आए। मैंने तुम सबको एक मसले के लिए बुलाया है। वो शैतानी औरत पहले शैतानी अमल करके गलीज जिन्नात कब्जे में करती थी, अब उसने हम नेक जिन्नात को कब्जे में करने का अमल शुरू कर लिया है। तुम सब मशवरा दो कि उस औरत का क्या किया जाए। उनमें से एक बोला कि किसी इंसान के जिस्म में दाखिल होकर उस औरत को मार देते हैं। बड़े जिन ने कहा कि किसी इंसान के जिस्म में दाखिल होना अच्छा अमल नहीं है, हमें कुछ और करना होगा। उनमें से एक जिन ने बताया कि फलां जगह और फलां घर है जिसमें वो रहती है। पिछली दफा जादू से उसने उसे वहाँ बुलाया था। दिन में वो वहाँ सोती है और रात को वो जादू करती है। बड़े जिन ने कहा कि ठीक है, तुम सब लोग जाओ, इस बारे में सोचते हैं कि क्या करना है और इस औरत को किस तरह खत्म करना है। फिर वो सब एक एक कर जाने लगे और फजलू बैठा देखता रहा। थोड़ी देर में कमरे का दरवाजा खुला और फजलू डर गया। ये मुअज्जिन था। उसने फजलू को देखा तो पूछा, कौन हो भाई, मुसाफिर हो? फजलू ने सिर हिलाया और बेहोश हो गया। जब होश आया तो कारी साहब और मुअज्जिन कह रहे थे, बेटा ठीक हो तुम? फजर की नमाज हो चुकी थी। उन्होंने मिलकर फजलू को उसके घर पहुंचाया। 3 दिन तक फजलू बुखार में मुब्तला रहा और वो याद करता रहता कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर उसने सोचा कि क्यों ना उन जिन्नात की मदद की जाए और जादूगरनी औरत को मार दिया जाए जो नेक जिन्नात को तंग कर रही है। उसने मंसूबा बनाया और एक भारी डंडा उठाया और जिन की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वाकई ही वैसा मकान मौजूद है। वो दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुआ। क्या देखता है कि एक छोटा सा मकान है, छोटा सा सेहन है और एक चूल्हा पड़ा हुआ है और एक कमरा है। उसने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, कमरे का दरवाजा आवाज करने लगा। उसने बड़ी एहतियात के साथ कमरे का दरवाजा खोला। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि जमीन पर एक औरत सोई हुई है, वही खौफनाक चेहरा और बड़े बड़े बाल। उसने हिम्मत करके डंडे को मजबूती से पकड़ा और उसके सर में दे मारा। जैसे ही उस औरत के सर में डंडा पड़ा, उसने जोरदार चीख मारी और फजलू ने देखा कि उसकी नाक, कान और हर चीज बड़ी होने लगी है और उसका चेहरा एक खौफनाक चेहरे में बदलने लगा है। औरत अपने सर पर हाथ रखे पढ़ाई शुरू कर दी। फजलू ने सोचा कि अगर इसको ना मारा तो ये मुझे मार देगी। फजलू ने उस डंडे के साथ उसके सर पे वार करना शुरू किया और उस औरत का सर कुचल दिया और वो औरत मर गई। फजलू एक दीवार के साथ लगकर हैरानी में ये खड़ा था कि क्या ये वाकई ही वही औरत थी? क्या मैंने किसी और को मार दिया? मेरे हाथ से एक कत्ल हो गया। इतनी देर में उसने देखा कि उस घर में हर तरफ से वही साए दाखिल होना शुरू हुए। आखिर में वो सरदार जिन भी आया और उन सब ने कहा कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया। उस दिन तुमको लगा कि शायद हमने तुमको नहीं देखा, लेकिन हकीकत में हम तुमको ही पैगाम देने आए थे कि उस औरत को मार दो। तुमने हमारा काम किया। तुम एक नेक बच्चे हो और अपने माँ बाप की मदद करना चाहते हो। बड़े जिन ने हवा में हाथ लहराया और एक थैली उसके हाथ में आई। उसने फजलू को दी और कहा कि जाओ जाकर अमीरी की जिंदगी गुजारो, ये तुम्हारा इनाम है। फजलू ने जब वो थैली खोल कर देखी तो उसमें हीरे, जवाहरात, सोना और चांदी थे। वो फौरन अपने घर पहुंचा और जाकर अपने माँ बाप को सारा किस्सा बताया और वो सोना भी दिखाया। अब उस खानदान के पास इतने पैसे थे कि वो अमीरी की जिंदगी गुजार सकते थे। कुछ दिनों बाद उसके बाप ने कुछ आदमियों के सामने ये सारा किस्सा बयान कर दिया। वो भूल गया कि उनमें एक ऐसा आदमी भी बैठा था जो सारे गांव में ये खबर फैला देगा। घर पहुंचकर उसे याद आया तो उसने अपने खानदान से कहा कि चलो ये गांव छोड़कर शहर जाते हैं। उस आदमी ने वैसा ही किया। उसने सारे गांव में खबर फैला दी। जब उस सोने के पीछे कई लोग आए तो देखा कि वो सब लोग छोड़कर जा चुके हैं। जब ये बात चौधरी को पता चली तो उसने कहा कि मेरी कोई चोरी नहीं हुई थी और वो एक नेक बच्चा था
اس نے جنات کی مدد کی، میں نے بھی اسے معاف کر دیا۔ اس طرح فضلو کا خاندان امیر ہو گیا۔ اگر فضلو چوری میں کامیاب ہو جاتا تو شاید زندہ نہ ہوتا۔ کبھی کبھی گناہ سے بچ جانا زندگی کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، ملیں گے اگلی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ۔